Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start chapter 1. The name of the chapter is number system. So what are the learning objectives in this chapters? First is Hindu-Arabic system of writing numbers. Estimation, we will study number system extended further, estimating the sums, addition, separating periods in Hindu-Arabic system, estimating the difference, subtractions, face value and place value. These are the topics. So we live with numbers, and numbers plays an important role in mathematics. In primary class we have studied about counting numbers, fractional numbers and decimals. We have also studied about addition, subtraction, multiplication and divisions of numbers. In this chapter we will review that we have learned earlier and also extended our knowledge to have idea of large numbers. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम नंबर्स के बारे में वी विल डिस्कस. कौन कौन से नंबर्स हैं? फर्स्ट इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. हिंदू अरेबिक नंबर्स है, ठीक है. इसके अंदर क्या है? वी हैव सम हिंदू अरेबिक सिस्टम. वी हैव 10 सिम्बल्स. सो व्हाट इज़ दिस? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay. So with the help of these numbers or these say digits, we will write any number or we will arrange the numbers. Okay. So further we go. For example, we have given an example here: 4 4 6 7 3 0 7 9 8 7 6 8 0 9 0 etc. are the numerals. So students, हमें कुछ numerals हमें यहाँ पर given है. ये जो numbers हैं इनको numerals कहते हैं बच्चों, ठीक है. So first example में we have to write all these numerals in this table which is given below. So given below are some numbers arranged in place values table. Write each number in words and put it in the extended form. So बच्चों देखो यहाँ पर ones है, thousands है, lakhs है, ये आपके periods we have given some. So ones place में बच्चों यहाँ पर ones आएगा, tens आएगा, hundreds आएगा. देन उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस में थाउजेंड्स आएगा, 10,000 आएगा, और लैक्स प्लेस में आपका लैख, 10 लैख. सो इन दिस वे वी हैव टू प्लेस द नंबर्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज 6,527. 6,527. तो ये आपका वंस प्लेस है, टेंस है, 100 है और ये आपका 1000. तो इस तरह से देखो, हमने यहाँ पर 6 को 1000 प्लेस में लिखा है, 5 को 100 प्लेस पे लिखा है और 2 को 10 प्लेस पे लिखा है एंड 7 को हमने 1 प्लेस पे लिखा है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट पेज सम सॉल्यूशंस आर गिवन हियर. सो इन दीज सॉल्यूशंस वी हैव टू राइट द वैल्यूज. फॉर एग्जांपल 1 में देखते हैं हम, वी हैव गिवन 6527. सो अगर हम 6527 की विल टॉक अबाउट दिस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 और इसके राइट में अगर हम देखें वी हैव 3 डिजिट्स. इट मीन्स it is multiplied by 1000. It means this, the value of 6 is on 1000 place is 6000. That is 6000. In the same manner, the place value of 5 is 5 into 100. It means 500. And the place value of 2 is 2 multiplied 10 because it is in the tens place. So we will multiply it by 10. So the place value is tens place, it is in tens place, and we will multiply it by 10, we will get 20. And the place value of 7 is 1, so we will multiply it by 1. The exact value of the place value of 7 is 7 here. So these are the examples which describing you the place values, exact place value of the digits in this number. So these are the examples. Next topic is number system extended further. अब बच्चों ये जो नंबर सिस्टम है ये एंडलेस है. इट मीन्स वी विल इफ विल टॉक अबाउट दिस 9999, इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स, बट इफ विल ऐड 1 to it विल गेट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दैट डिजिट नंबर. जितनी भी उसके अंदर डिजिट्स होगी वी विल गेट दैट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर टू द नेक्स्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, विच इज़ गिवन इन द प्रीवियस. सो this will count it, the many zeros are here after 1. Okay, so by adding 1 we will get the next smallest value of this value, ठीक है ना. We have given some examples here also. Example 2. So the values are given. Example 2,
we have to also again we have to put these values in the table which is in ones, thousand, lakhs and crore places. We have to adjust the numbers. So in first example this is 9, 5, 6, 2, 4, 9, 0 and 1. So 1 is on ones place, 0 in tens place, 9 in thousands place, 100 place, 4 in thousand place. So in this manner we have to categorize or plot the values according to the table. Okay. Come to the next page, the separating periods in Hindu Arabic system. सो अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में स्टूडेंट्स हम सेपरेट करते हैं किसी भी नंबर को फ्रॉम राइट से हम देखते हैं फ्रॉम राइट वी हैव टू पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स देन आफ्टर 2 डिजिट्स देन आफ्टर 2 डिजिट्स इन द सेम मैनर वी हैव टू प्लेस द कॉमास. ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द कॉमा after 3 digits, then after 2 digits, then after 2 digits. In this manner this will go infinite. ठीक है, whatever given in the question. So in example number 5 we have given a question is 756249002. This number we have to put in this table. So we will see here 2 is in unit place, so we will put it 2 in unit place, then 0 in tens place, then next number on the 100 place. In this way 24 on the thousands place, lakhs, 56 on lakhs place and 7 in crores place. So in this manner we have to put the values. Or in example number 4 another example is given. Again we have to put this 0, we have to put 9 on ones place. In this manner thousands place we have to put 72 in thousands place, because there are two subcategories of thousands place. Okay, because this is 72,000, because this is ones, tens, 100, 1000, 10,000. So this 1000 and 10,000 is categorized under thousand place. So therefore 72 is categorized under thousand place. This is your thousand place. It has two sub categories, that is thousands and 10,000s. In the same manner there are two categories of lakhs, that is lakh and 10 lakh, and also in crores, crore, 1 crore and 10 crore. Okay, so therefore we had adjusted 2 digits in these boxes because it is categorized in two more sub categories. So again is the next topic is face value and place value we have given. So what is this? So what is place value? For example, I will write an example of 267. So if I will ask what is the place value of 7 here, so the place value of 7 is 7. And what is the place value of 6? Place value of 6 is 6 multiplied by 10, that is 60, because 6 is on the tens place, so we will multiply it by 10. So the answer will be 60. And what is the place value of 2? 2 is multiplied by 1000 because it is on ones, tens, 100. So we will multiply it by 100. So it is on 100 place. So the value of 2 is 200. Okay. But when we talk about the face value, the face value is same as the value which is given in the number. So the face value of 7 is 7, face value of 6 is 6 and the face value of 2 is 2. That will not change according to the place value. It will remain same which is given in the question. Okay, students. So in this way, come to the next page. So we have given some examples 5, 6, 7, 8, 9. So in these examples elaborating you how we will write a number in tabular form, which we had discussed already, and we have given some word problems. Example number 5, find the difference of the place value of the two 4s in 469204553. So students, इसमें हमें we have given 2 times 4 in this question, 469204553. So 4 is here and 4 is repeated here. So we will write here, we have to find the difference of the place value of these. So what is the place value of this? This is ones, tens, 100. It means 4 is multiplied by 100, we will get 400.
And what is the place value of this? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. So student, example number 6 we have given to find the difference of the place values of the two fours which is given in the question. The question is 469204553. So 4 is here and 4 is here. So this is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh or then crore. So the place value of 4 is here is 4 crore. It means 4 multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, we will get 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros here. This is 4 crore. Or the place value of this 4 is 4 into 100, that is 400. But we have to find the difference of it. So we will subtract 400 from 4 crore. So I'll get 0, 0, 10 minus 4, that is 6, 9, 9, 9, 9, 3. That will be 3, or we will put the commas here. So this will become 3 crore 99 lakh 99,600. Okay students, in this way you have to do these examples. Next topic is international system of numeration. So in the international system of numeration adopted by all the countries throughout of the world, the place value chart is given. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Students, there is another value that is called 100,000 also here. Okay, in Indian value chart there is ones, tens, 100, 1000, 10,000, then lakh. But here is after 10,000 there is another value, that is another place, that is 100,000. It is categorized under 1000 place. The next one is million, not lakh. Okay, in international system of numeration there is no place of lakh, there is million, which is equal to 10 lakh. 1 million, 10 million, 100 million, then billion, 10 billion and 100 billion. In this way we have to write the numbers in these categorized placed chart, place value chart. So for example, we have given example number 10, or we have given an example which is given in this table, that is 55125673. Another example is 10 is rewrite each of the following numbers with proper commas using international place value chart. So first is given 73684. First is given 73684. So actually we will put here commas after 3 numbers, not 3 then 2, which is mentioned in Indian place value chart. But in international place value chart we will put the commas after 3 digits. So we will put here 3. After 3 digits I will put the comma here. So the value of this number is ones, tens, 100, 1000, 10,000. It means that is 73,684. इसको ऐसे रीड करेंगे बच्चे, और हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा वंस प्लेस है ये, जैसे मैंने यहाँ पर प्लेसेस लिखे हैं वहाँ पर इनको वी हैव टू पुट देम हियर. ओके, फॉर एग्जांपल सी पार्ट पे आते हैं. यहाँ पर 89637582. सो दिस इज सी 6896375882. So this is your, we will put the commas after 3 digits. So here, so this is your ones place, tens, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million, then 10 million. So this is your 89,637,584. So we'll put here. Okay, so in this way we have to write the questions, okay, in international place value chart. So in the international system we write them words as is this. So these are the word problem of these questions which I earlier mentioned you. So in this way you have to read it, 89,637,584, and we have to write in this way. Okay, so we have given some HOTS question, that is higher order thinking skill question. So this question is very important. I am a 5-digit number. I am a 5-digit number. It means I am a 5-digit number.
So there is 5 places, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. My ones digit is 3. My ones digit is 3. तो वंस डिजिट 3 है, so we will put 3 on ones place. Okay. My hundreds digit is 2 times my ones digits. वंस टेंस देन हंड्रेड्स बच्चों ये वाली होगी वंस टेंस हंड्रेड, और जो 100 डिजिट है और दैट इज 2 टाइम्स वंस डिजिट. तो 2 टाइम्स वन डिजिट का 2 टाइम्स कितना होगा, 3 2 6, तो इट इज 6. माई टेंस डिजिट इज द सम ऑफ वंस डिजिट एंड 100 डिजिट्स. इन दोनों का बच्चों सम करना है आपको, वो टेंस हो जाएगा, दैट इज 6 + 3 9. माई थाउजेंड्स एंड 10,000 डिजिट, दिस इज 1000 and 10,000. Okay, digits is 1 less than 100 digit. 100 डिजिट पे बच्चों कितना 6 है, तो इसमें हम 1 कम कर देंगे, दैट इज 5 and 5. Because my thousands and 10,000 digit is 1 less than the 100 digit. So what number am I? The number is 55693. So we will read it 55,693. So this is the answer of A part. So B part is write my successor. Successor means next value. So we will add 1 plus 1 this. So the answer will be 694 this. In C part, am I greater than or less than the number? Am I greater than or less than the number? 55,936. 55,963. तो अब स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है एम आई ग्रेटर देन और लेस देन द नंबर. मतलब ये जो हमारा अभी जो नंबर आया था ए पार्ट में, क्या ये इससे स्मॉलर है और ग्रेटर है? ऑब्वियस है ये 693 है 55,000 और ये 55,960, तो स्मॉलर है, तो सी का आंसर हो जाएगा स्मॉलर. मतलब जो हमने गिवन नंबर है इससे स्मॉलर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम. लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स. 9018. तो फर्स्ट इज 9018, तो विल राइट इट 9018. This is the answer of first part. Okay. Next is the remaining part you have to do. Question number 2. Question number 2 A part. Write the following numbers in words. So we have given 63005. So we will write it as 63,005. So in this manner we have to write it. So the remaining you have to do. Question number 1, question A of question number 3. Rewrite each of the following numbers with proper commas. Using the international place value chart, also write the number name of each in the international system. So देखो स्टूडेंट फर्स्ट वाले पार्ट में we have given 7 3 5 8 2 1. So first of all we will put the commas after 3 digits. So this is the number after comma. So we will write this in word. So that is, we will read it as 735,000. 735,000 821. Okay, because this is your ones place, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. Therefore 735,000. Okay, then 821. So in this way you have to do question number 3. Now in question number 4, write each of the following figures in international place value chart. So international place value chart में हमें बच्चों इनको लिखना है. First is given 5,005,005. 5 million. So ones, tens, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million, then 10 million.
So we have given 5 million. So 5 million, then 5,000, 5,000, 5. So on these places which are empty, we will put here 0. So the answer will become this. We will put the commas after 3 digits. We will get 5 million, 5,000 and 5. This is the answer of this question. So in the same manner you have to do the remaining parts. Now question number 5. Write each of the following numbers in short form. So बच्चों ये हमें जो नंबर दे रखा है इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई देन वी विल ऐड, वी विल मल्टीप्लाई देन वी विल ऐड. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव गिवन 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो दैट विल बिकम 60,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1,000, दैट विल बिकम 2,000. देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500. Then 8 into 10, 80. Then 4 into 1, 4. We will add all of them. Then we will get 60, then 2, 62,584. Okay, clear है बच्चों यहाँ तक. Next 6 question पे आते हैं. Remaining you have to do in the same manner. Question number 6. Write the following numbers in expanded form. So we have given a question that is राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो स्टूडेंट इसको हमें 6 क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो देखो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 6 को. फर्स्ट पार्ट इज गिवन 1, 5, 7, 6, 8. तो दिस इज योर वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 का हम बच्चों प्लेस वैल्यू लिखेंगे, दैट इज, चलो पहले हम 8 का लिख लेते हैं. 8 का हो जाएगा 8 इंटू 1. देन 6 का लिख लेते हैं 6 इंटू 10 क्योंकि टेंस प्लेस पे. देन 7 का वी विल राइट 7 इंटू 100. देन राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इंटू 1000 बिकॉज इट इज़ इन 1000 प्लेस. देन प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज ऑन 10,000 प्लेस. तो दिस, एंड इसको हम कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 100 plus 5 into 1000 and plus 1 into 10,000. Okay students, this is the expanded form of this question. Question number हम 6 पे चलते हैं अब. Now in question number 6, so the remaining part you have to do. Question number 7. How many thousands make a crore? So बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ मैनी थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है 3 एंड वी हैव टू बिकम इट 1 करोड़. तो 1 करोड़ में हाउ मैनी जीरोस, देयर आर 7 जीरोस इन 1 करोड़. 1 2 3 4 5 6 7. सो 3 आर हियर, 3 आर हियर, सो द रिमेनिंग 4 वी हैव टू पुट. सो बाय दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई 10,000 बाय 10,000 to become it 1 crore. So how many thousands make a crore? So 10,000 thousands. तो इसका आंसर होगा 10 thousands make a crore. ठीक है बच्चों, मतलब ये इसका आंसर है. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10,000. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस. ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस, तो ये आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस. तो आफ्टर में बच्चों 1 ऐड कर देना आपको, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि कितनी 7 डिजिट नंबर्स होती है टोटल मिला के. तो देखो अगर मैं एक 7 डिजिट का नंबर लिखता हूँ, वो बड़े से बड़ा, वो क्या होगा 9 9 9, इट इज़ 9. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. तो स्टूडेंट ये आपका 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है. दैट इज़, इसको अगर हम इंडियन में पढ़ें, रीड करें, तो इट विल बिकम
99,99,999, ठीक है। तो ये 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अच्छा, लेकिन हमें तो कौन से बताने हैं, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स, ओनली 7 डिजिट, 6 वाले तो हमें चाहिए नहीं है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है वो देख लीजिए। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा 9993,999। तो दिस इज़ योर लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। और बच्चों हम इसको अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम स्टूडेंट। व्हाट कम्स, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन, 10 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन 49520,981। सो बच्चों इस टाइप का हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने दोनों की प्लेस वैल्यू निकाली थी और उसको सब्ट्रैक्ट किया था। सो इन द सेम मैनर यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू 7। सो सेम 11 and 12 आर सेम। Question number 13, write all 3 digit numbers using this 2 3 4 taking each digit only once। So question number 13 में क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए यदि एक बार देखते हैं इसको 13 को। Question 13 is saying that all 3 digit numbers using 2 3 4 taking each digit only once। तो जैसे कि हमने 2 3 फॉर्म इससे एक नंबर बनाया, देन हम 2 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, और फिर हम 4 को आगे ले आते हैं, 2 को बीच में रहने देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2 को हमने स्टार्टिंग में ले आए, बीच में लाए, मिडल में, और इधर भी देखो मिडल में ही रखा, इसको इधर उधर ले आए, ठीक है। ऐसे अब हम क्या करते हैं, 3 को हम स्टार्टिंग में ले आए थे, तो अब मैं 4 को इधर ले आता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं 3 का अगर और कुछ सोचूं बीच में, तो यस, अगर इसको बीच में लेके आऊँगा तो 3 मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 4 को इस तरफ ले आता हूँ, 2 को इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे और भी जो बन सकते एग्जाम्पल यू हैव टू मेक। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। तो बच्चों हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट्स का यूज़ करके इनका, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके, तो 1 जो 0 वैल्यू है उसको हम लेफ़्ट में कभी भी टू द लेफ़्ट, जो स्टार्टिंग लेफ़्ट होता है उसमें नहीं लिख सकते 0 की वैल्यू को, ठीक है। तो हम उसको सेकंड लेफ़्ट में लिख सकते हैं, सेकंड, ठीक है। वी हैव टू राइट इट टू दिस प्लेस, ओके। सो वी हैव गिवन ए क्वेश्चन 3 1 0 5 and 7, these digits we have given, so we'll write it as, we have to become it a smallest number। तो smallest number बनाने के लिए बच्चों हम पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे, we cannot use here 0 हम we can use here to the right of this, then हम इससे greater number, then हम और greater than the biggest number हम right side में shift करेंगे, तो this will become the smallest number by using these digits। So in question number 15 same you have to do। So बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो व्हाट आर द रूल्स इज, रूल 1, द नंबर हैविंग लेस डिजिट्स इज लेसर देन द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स। मतलब अगर कोई नंबर में कम डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मैंने नंबर लिया 12, एक नंबर लिया 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 इज़ ग्रेटर देन 12, क्योंकि 1 2 3 में 3 डिजिट्स हैं और 12 में 2 डिजिट्स हैं, ओके। तो आप ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर नंबर। इन रूल नंबर 2, इफ़ द 2 नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी विल फॉलोइंग द प्रोसीजर एज अंडर। तो बच्चों ये जो प्रोसीजर है इसको हमने यूज़ करना है, इसमें कुछ स्टेप्स गिवन है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो इसको हम यूज़ करना है, ठीक है। हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग हम दोनों वे में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे, हमें गिवन है विच इज़ ग्रेटर, इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। ऑब्वियसली सबसे पहले आप टाइम ना वेस्ट करते हुए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे। अगर किसी नंबर में ग्रेटर डिजिट्स है इट मीन्स दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन टू द अदर नंबर। तो जैसे कि हम इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं फर्स्ट वाले में,
इसमें देखो इसमें 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में 8 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, दिस डिजिट इज द विनर, दिस वैल्यू इज द ग्रेटर। इन एग्जाम्पल 2 में चलते हैं बच्चों हम। एग्जाम्पल 2 में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम इसको ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम रख देंगे और हम चेक करेंगे। और कहाँ से चेक करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, दोनों में देखो 7 7 है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स देयर इज़ अ टाई। जब टाई हो जाता है नंबर्स में तो हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब हम 10 lakhs की तरफ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे भी टाई हो गया है, अभी भी कोई डिसीजन नहीं है, इट मीन्स विच इज़ ग्रेटर। देन हम लैक्स की तरफ जाएंगे। अब लैक्स में टाई नहीं हुआ है, लैक्स में ये 8 है और ये 7 है। तो हमने ये पीछे का कुछ नहीं देखना, हमने सोचना ही नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है। यहीं से कंक्लूजन आ जाएगा कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7। इट मीन्स फर्स्ट नंबर, ये जो ऊपर वाला है, इट मीन्स जो फर्स्ट वाला था ये वाला, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर वैल्यू। Okay student, in the same manner you can arrange it in the ascending order and descending order also. So these are the examples, you can see it, you can go through it. So now this hot question you have to do also. Now let's practice 1.2 questions. We will do question number 1. Compare the numbers and put the sign greater than, less than or equals to in the boxes. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या है बच्चों, कुछ नंबर्स गिवन है और यहाँ पर हमें मार्क लगाना है, ठीक है, साइन लगाना है। वी हैव टू पुट द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं सेम वही तो है, बस हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स पहले काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स है। और राइट वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है मेरे ख्याल, 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 6 है और इधर 7 है। इट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। अदरवाइज हम क्या प्रोसीजर करते हैं, हम लेफ्ट से देखते हैं, टाई होता जाता है, जहाँ पर टाई खत्म हुआ दोनों वैल्यूज़ का, विच वन इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू इज ग्रेटर। जैसे कि हम एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल नंबर आते हैं एफ पे। अब हम एफ पे देखें तो नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका मतलब टाई हो चुका है नंबर ऑफ डिजिट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से देखेंगे। लेफ्ट में देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, तो इट मीन्स टाई हो गया। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट की तरफ, इधर 0 है और इधर बच्चों क्या है, 1 है, बस। अब यहाँ पे कोई टाई नहीं है, इधर 0 है इधर 1 है, तो विच इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर। इट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर। बाकी हमने कुछ देखना ही नहीं है राइट की तरफ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम वी हैव टू कैटेगराइज और राइट द वैल्यूज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, देन लाइक दिस वी हैव टू प्रोसीड अनदर, द ग्रेटर, देन मोर देन दैट ऑफ नंबर, देन मोर देन दैट ऑफ नंबर, वी विल राइट। So we have given some values. So for this, first of all, we have to categorize the numbers according to the number of digits. So first is 7000. First is 700087. Another number is 801427. Then 801503 1001248 8014306. Okay students, so first of all we will count the number of digits. तो 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखो सिंपली कर लेते हैं, ऐसे इजी रहेगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7 डिजिट्स है। इट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया है कि जिसमें डिजिट्स कम है उसमें टाई भी नहीं है अगर, तो इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट है। तो इसमें देखो 6 ओनली एक ही है, 6 डिजिट वाला, तो इसको हम रैंक 1 दे देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक किसको गया आपका, इसको, मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं 6 डिजिट के बाद 7। अब 7 वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है। देन क्या करेंगे हम, तो मैंने बोला था जब टाई हो जाए नंबर ऑफ डिजिट्स में तो हम लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ देखते हैं इन तीनों की। तो इसमें भी पहले से टाई है 8 8 8, तो हम सेकंड वाली पे चलेंगे 0 0 0, फिर अगेन टाई है, फिर हम लेफ़्ट और जाएंगे राइट में 1 1, अगेन टाई है तीनों में 1 1 1। देन देखो बच्चों इसमें 4 है, इसमें 5 है, इस वाले में 4 है। तो इट मीन्स ये कंफर्म हो गया 5 इज़ ग्रेटर देन 4। इट मीन्स ये ग्रेटर है इन दोनों से, लेकिन हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें तो स्मॉलर लिखना है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया ये वाला और ये वाला स्मॉलर है इस वाले से। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इसका और इसका। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर अब 2 है, इधर देखो यहाँ 2 है, और यहाँ पर बच्चों कितने 3 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो विच इज़ स्मॉलर 2। इट मीन्स सेकेंड रैंक गोज टू दिस नंबर, सेकेंड रैंक है इसका। ठीक है, मतलब सबसे स्मॉलर फर्स्ट वाला है, उसके बाद ये वाला है, सेकेंड रैंक गोज टू दिस, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस रैंक। नेक्स्ट हम थर्ड रैंक की तरफ चलते हैं। अगेन हम अब ये वाला हमने कर लिया है क्वेश्चन, ये वाला भी हो चुका है, ये हमने कर लिया है, ये वाला हो चुका है, तो उसको मार्क कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये भी कर लिए। अब हम 8 8 वाले पे आ जाते हैं अगेन। तो 7 7 डिजिट्स इसमें, तो इसमें यहाँ तक 5 और 4 में अब हम चेक कर लेते हैं। तो 4 इज स्मॉलर है, इट मीन्स ये वाला थर्ड रैंक जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थर्ड रैंक गोज टू दिस नंबर। फोर्थ रैंक किसको जाएगा स्टूडेंट, इसको जाएगा फोर्थ रैंक, क्योंकि 7 डिजिट्स है ना इसकी। अब इसी का ही बचा, और एट द लास्ट द ग्रेटर डिजिट्स, इट मीन्स द नंबर इज लार्जर। तो ये आपका फिफ्थ रैंक हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये वाला फर्स्ट आएगा 7 0 0 0 8 7, स्मॉलर है क्योंकि सबसे। देन 8 0 1 4 2 5 7। देन उसके बाद आपका थर्ड रैंक ये वाला था 8 0 1 4 3 0 6। देन फोर्थ रैंक था 8 0 1 5 0 3 2, और फिफ्थ रैंक था आपका 1 0 0 1 2 4 5 8। Okay students, so in this way you have to do question number 2. In question number 3, arrange the following numbers in descending order. बच्चों इसमें भी सेम है, बस इसमें आपको सीक्वेंस उल्टा लगा देना है, रिवर्स कर देना है। इट मीन्स जो आपका फिफ्थ रैंक था ये वाला सबसे लास्ट में, उसको आप सबसे फर्स्ट रैंक दे देना है। मतलब रैंक उल्टा चलेगा, इसको फर्स्ट कर देना, इसको सेकंड कर देना, इसको थर्ड कर देना, इसको फोर्थ कर देना, इसको फिफ्थ कर देना। दिस विल बिकम इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट हम सोल्व एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर्स ऑपरेशंस वी हैव गिवन। तो स्टूडेंट्स इसमें अब हमें सिंपली ऐड करना है। वी हैव गिवन सम वर्ड प्रॉब्लम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस, फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब बच्चों अगर हमें डिफरेंस दे रखा है टू नंबर्स का इतना है, अगर उसमें से स्मॉलर नंबर अगर हमें गिवन है, छोटा नंबर इतना है, तो हमें बताना है कि ग्रेटर नंबर क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर नंबर आएगा कैसे, इनको ऐड करके तो आएगा, दो वैल्यूज़ को, सिंपल है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इससे वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1 4 3 5 0 1 3 0, दैट इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर टू दिस वैल्यू। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों हमें चीज़ों को हैंडल करना है कि व्हाट इज गिविंग in this question and we have to understand, then we have to solve these examples. तो student you have to do yourself. now हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस 1.3 के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हम इनको सॉल्व करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताए हैं एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल जो अभी बताया था, अब हम उसको एक्सरसाइज में करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें कह रहा है बच्चों एक नंबर हमें गिवन है 1 1 0 1 0 1 0 1। तो हमें कह रहा है कि इसमें से हम क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, हमें ये मिल जाए। इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे ये मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें से मैं कोई वैल्यू माइनस ही तो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट इट x, if I'll subtract x from this value,
आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें ये ऐड करना है कि प्लस करना है, तो हमें ये बताना है कि इसमें मुझे क्या माइनस करना है, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे याद कर रख लो आप, ठीक है, जिसके लिए आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हो जाएंगे काफ़ी। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे x सब्ट्रैक्ट करना है तो वो x ही तो मुझे बताना है जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो माइनस का x है इसको हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और वेन एवर वी शिफ्ट द वैल्यूज़ टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वी विल चेंज द साइन ऑफ दैट वैल्यू। सो बच्चों ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसको भी हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 1 0 1 0 1 0 1, और ये लेफ्ट में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस का है ना साइन देखो यहाँ पर, तो ये सब्ट्रैक्ट का माइनस का हो जाएगा इधर जाके, वो शिफ्ट हुआ है ना राइट से लेफ्ट में, तो 2 6 3 5 9 6 7, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो अब आपका आंसर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मतलब वो x वो वैल्यू है जो कि सब्ट्रैक्ट की जाएगी इसमें से, ताकि हमें ये मिल जाए। सिंपल है। नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज़ द नंबर। बच्चों एक नंबर है जो कि क्या है, ज़्यादा है इससे इतना, अब वो नंबर हमें पता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू 2 भी गिवन है हमें, इसमें हम x ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमें दे रखा है ना बच्चों, ये देखो 3 7, ये क्या दे रखा है आगे 6 है, देन 8 है, इसमें जो भी दे रखा है इसमें हम x ऐड कर देंगे, ठीक है, और इक्वल में हम लिख देंगे 3 6 1 5 0 4 5। बस हम जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, अब ये जो x तो पॉजिटिव है इसको अब यहीं रहने देंगे हम, ठीक है ना, और ये वैल्यू जो है वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अ नंबर एक्सीड्स टू दिस बाय, कह रहे एक नंबर है एक्सीड करता है इससे इतना, तो व्हाट इज़ द नंबर। अब इसमें क्या पूछ लिया, अब घुमा के पूछ लिया, इसमें कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, ये इससे एक्सीड करता है, तो हम इसको एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं एक बार। हमें क्या करना है, वो नंबर लेट कर देंगे, लेट द नंबर इज x, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, वो x हमें बताना है जो कि इससे इतना ज़्यादा है, तो हम इसमें 3 7 6 8 4 9 5 5 प्लस कर देंगे ये वैल्यू 3 6 1 5 0 5, एंड वी विल गेट द वैल्यू व्हाट इज आस्किंग बाय द क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स दिस एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक नंबर गिवन है, जैसे कि क्या गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 5 3 6। अब आप बच्चों इसको रिवर्स करो, रिवर्स करो, आपने इसको रिवर्स किया तो पहले 6 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, मतलब आपने इसको इसकी तरह ऐसे लिख दिया ऑर्डर, तो ये बन गया, ठीक है। अब आपसे इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो इनमें से माइनस कर दो, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर, बस जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन हैड दिस विद हिम, ही स्पेंट दिस ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपके पास कुछ मनी है और आपने कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है ना, वट एवर, और तो आपके पास अब कितना पैसा बचेगा, हाउ मच मनी यू लेफ्ट, तो आप उसमें से वो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 3 6 0 7 0 8 5 फ्रॉम 2 0 0 0 0 0, जो ये गिवन है आपको सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इज इट क्लियर। Question number 5. The total population of a city is this. If the number of females is this, find the number of males in the city. ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो पॉपुलेशन है डेट इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू द मेल प्लस फीमेल है, मतलब गर्ल्स है उसमें बॉयज़ हैं। तो अगर हमें एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट द अनदर वैल्यू बाय, वी विल गेट द अनदर वैल्यू बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ, जो हमें क्या गिवन है इसमें फीमेल्स, तो फीमेल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पॉपुलेशन में से, तो विल गेट द मेल्स। तो मेल्स कैसे आएगा, P माइनस F, तो हम पॉपुलेशन में बच्चों फीमेल्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 5 था आई थिंक। 6 की तरफ चलते हैं। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन ए टाउन प्रोड्यूस दिस बैग्स
दिस बैग्स ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट। बच्चों जब भी ये ऑल की बात करेगा ना क्वेश्चन में, तो सिंपली आपको यही सोचना है कि इनको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो आपको इसको ऐड कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ वॉच रुपीज दिस, हाउ मच विल दिस सच वॉच कॉस्ट। कह रहा है कि अगर एक वॉच की कॉस्ट इतनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एग्जाम्पल ना लेके मैं कहता हूँ कि एक वॉच की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो अगर इफ़ आई विल आस्क दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस, तो वी विल मल्टीप्लाई 10 by 2, इट मीन्स 20। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 वॉचेस, वी विल मल्टीप्लाई 10 by 3, इट मीन्स 30। तो इसी तरह से अगर एक वॉच की कॉस्ट 1485 दे रखी है हमें, तो अब हमें कह रहा है कि 469 वॉचेस की कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए स्कूल 35 रोज आर फॉर्म्ड, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज दिस, कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। ऑब्वियस सी बात है, एक जो रो है उसमें कम ही तो स्टूडेंट होंगे, और जब बात कम की होगी इट मीन्स डिवाइड करना है। तो 1680 को आप डिवाइड कर देंगे 35 से। क्वेश्चन नंबर 9 में यू विल डिवाइड बाय 35, और किसको करेंगे डिवाइड, 1680 को। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 35 4 होता है 140, ठीक है। और उसके बाद आप 35 4 140 हो गया। अब इस 140 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 28, और यहाँ पर आप फिर कैरी कर लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद उसको फिर हम आगे करेंगे 6 पे करेंगे तो 8 पे करते हैं, 5 8 40 कैरी 4, और 8 3 और ये 28, तो ये आपका 8 पे गया है। तो 48 इज़ द आंसर। इट मीन्स हर एक रो में 48 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं अब। हाउ मैनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग 840 एप्पल्स इफ़ ईच बैग कंटेन्स 20 एप्पल्स। तो बच्चों आप 840 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 42 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 60 चेयर्स एंड 40 टेबल्स वर परचेज फॉर ए स्कूल इफ ईच चेयर कॉस्ट रुपीज दिस एंड टेबल कॉस्ट रुपीज दिस, फाइंड द टोटल कॉस्ट। बच्चों जब भी टोटल कॉस्ट की बात होगी ना, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई। कैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, 40 टेबल्स से टेबल्स का निकालो पहले टोटल खर्चा। तो 40 मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, आप 40 सॉरी पहले हम चेयर, चलो 40 पहले टेबल्स का ही निकाल लेते हैं। तो टेबल्स कितना है यहाँ पर है 450 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो इस बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। और चेयर भी इसमें है, चेयर कितनी है यहाँ पर क्वेश्चन में, चेयर आर 60। तो 60 की आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय, इफ़ ईच चेयर 225 की है तो 25 से, फिर जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी यू हैव टू ऐड देम। तो ये आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट 12 पे आते हैं हम। अ वायर ऑफ लेंथ इज दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब बच्चों 10 को आप 8 से डिवाइड कर देना। अब 10 तो सर मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो यू विल गेट 1000 सेंटीमीटर्स। और जब 1000 सेंटीमीटर्स को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है। तो 1000 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करिए 8 1 8, 8 1 8, तो यहाँ पर कितना है आपका कैरी कितना हो गया, 8 1 8 20, 8 2 16, और ये 48 5 तो 125 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ ईच जो कट किया है इन्होंने, तो ये लेंथ निकल के आएगी, ठीक है ना, ईच पीस की। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ इज नीडेड, ओके। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यू हैव टू डिवाइड 14 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 8। तो 13 क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे डिवाइड सर, तो 14 मीटर और गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो इसको आप एक सिंगल यूनिट बना लीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, सेंटीमीटर में आ जाएगा, और 80 सेंटीमीटर तो है ही, तो यू विल गेट 1400 प्लस 80, तो 41480 सेंटीमीटर। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे करेंगे डिवाइड, इसको 8 से।
तो आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 वन ज़ा 8, विल गेट 6, 68। अब किस पे जाएगा बच्चों ये? 8 8 जा 64, 4 कैरी 0, विल गेट 0, 8 5 जा 40। तो ये आपका आंसर आ गया 185। मतलब इसमें 100 जो 85 है, 185 सेंटीमीटर इतना क्लॉथ जो है वो नीड होगा आपको एक, जो हमें क्या बनाना है इसमें, ट्राउज़र बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। आप बोलोगे सर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यू विल गेट 1.85 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड बाय विद अ गैस इज दिस एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज दिस, हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन इट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा कुछ खास है नहीं। देखो द मास ऑफ ए सिलेंडर बच्चों कितना है, मास का मतलब टोटल मिला के जो उसके अंदर है 30 kg। देखो kg का मैं अलग कॉलम बना लेता हूँ और ग्राम का अलग, तो ये आपका 30 हो गया और ये क्या हो गया 250। और मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना है 14, तो यहाँ पर एम्प्टी लिख देते हैं, kg के नीचे kg और 480। ठीक है, तो अब हमें इससे पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एम्प्टी प्लेस है, एम्प्टी स्पेस है तो माइनस कर देंगे, जो बचाएगा वो आपका गैस का वेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो 5 स्मॉलर है, कैरी लेना पड़ेगा इससे, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 15 इसके 7 हो गया। अब 1 को फिर इससे लेना पड़ेगा कैरी, और ये इससे कैरी लेगा तो बच्चों यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका यहाँ पर ये जो 250 था ये 1250 हो जाएगा, मतलब 250 प्लस 1000 करना पड़ेगा, तो 1250, तो यहाँ पर 1 भी हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो जाए, मतलब पहले से यहाँ पर 1 था और ये 1 हो जाएगा, तो 11 में से आप 4 माइनस करेंगे, यू विल गेट 7। क्लियर है, चाहे आप साइड में करके देख लो। 840 को यहाँ से माइनस करेंगे, यू विल गेट 11, 587 एंड अगेन यू विल गेट 11 माइनस 4, यू विल गेट 6 7, तो 770। और यहाँ पर आपने एक कैरी ले लिया, तो ये आपका 30 था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14, इसमें आपका क्या था 30, तो यहाँ पे 29 हो गया। अब इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 9 बच गया, 9 माइनस 4 हो गया आपका 5 और 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, तो आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर 25 kg 770 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 15, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 12,825 pens in a day. After a month, total produced pens are distributed equally to 5 dealers. How many pens will each dealer get? Assume that the month is 30 days. बच्चों इसमें कह रहा है कि 5 डीलर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा कितना हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें हुआ है हमारा 12825। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये 5 डीलर्स के बीच, 5 डीलर में हाउ मेनी पेन्स विल ईच डीलर, तो ईच डीलर के लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कैरी 2 हो गया, 25 5 ज़ा 25 हो गया, यहाँ पर बच्चों 3 आ गया, 30 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 2565 ईच डीलर के पास आ जाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, अज्यूम दैट द मंथ हैज़ 30 डेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों हम, दैट इज एस्टिमेशन। हम एस्टिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर is very popular and commonly used method. In this method we follow certain rules in rounding of a number to the nearest 10, nearest hundreds, nearest thousand, etc. These rules are given below. तो बच्चों कुछ ये राउंडिंग ऑफ के देखो बच्चों रूल्स हैं, 10, 100, 1000। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे इनको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 पे आते हैं अब हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 पे आते हैं हम। इसके एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है बच्चों? एग्जाम्पल 1 में गिवन है कि हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, एग्जाम्पल 1 नीचे, इसमें हम एग्जाम्पल 1 नीचे यहाँ पर हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट है 51, तो ए पार्ट है 51। तो ए पार्ट में देखो बच्चों हमें राउंड ऑफ करना है,
तो हमें किस में करना है राउंड ऑफ? राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 10 में करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे कि जिसमें भी करना होता है, जैसे कि ये 1s प्लेस है और ये 10s है, तो हमें 10 में करना है, तो 10 पे आप ऐसे सर्कल कर लीजिए, ठीक है। उसके जो राइट में जो भी है ना, आप उसको बना दीजिए 0, क्या बना दीजिए 0। और फिर आपको देखना है ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इट मीन्स यू हैव टू ऐड टू द नेक्स्ट नंबर, टू द लेफ्ट वर्ड, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू अगर 5 है और ग्रेटर देन 5 है, देन यू हैव टू ऐड 1 टू 10s प्लेस, अदरवाइज नॉट। तो अभी देखो यहाँ पर बच्चों 1 है, 5 और ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इसको तो पहले तो 0 बनाएंगे और 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्यों? 1 ऐड कब करते हैं? जब ये वाला जो प्लेस होता है बैक साइड वाला, ये या तो 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। क्लियर हो गया होगा बच्चों। जैसे कि हम एक और उठाते हैं इसमें से एग्जांपल, ये डी वाला, ठीक है। इसमें गिवन है 1045, तो 10s प्लेस पे करना है, मतलब यहाँ पे करना है, तो बाकी इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये जो है इसको हम एक सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 5 है, इसको हमने 0 बनाना होता है बस, और कुछ नहीं। अब देखो ये वाला प्लेस 5 है, तो मैंने अभी बोला ना आपको 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, इट मीन्स वी हैव टू ऐड 1 टू द 10s प्लेस, तो 1 ऐड कर दीजिए 4 में, 4 + 1 5, 0 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4050। क्लियर है बच्चों? ऐसे हम सभी का कर सकते हैं, जब 100 प्लेस होता है, चाहे वो 1000 प्लेस हो, वेदर इट इज़ 100 और 1000। सो कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस 1.4। तो 1.4 पे आते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। इसमें हमें क्या करना है? नियरेस्ट 10 में करना है, जैसे कि अभी मैंने बता दिया था, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हमें गिवन है 15, तो इसमें हमें 1s 10s पे करना है, तो 10s नंबर तो ये वाला होता है, मतलब इस पे करना है। तो इसको छोड़ के ये जो बैक साइड का, इसको 0 लिख दो, और ये वैल्यू देखो 5 है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 5, ये हो गया 1 + 1 2, तो 20 आंसर हो गया इसका। सो द रिमेनिंग यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं हम। इसको हमें बच्चों एस्टिमेट करना है नियरेस्ट, इसको भी हमें 10 में ही करना है, ठीक है। तो चलो इसको 10 में भी करते हैं। 40 दे रखा है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, व्हाट नंबर्स कुड बी द एस्टिमेटेड एज। तो देखो इसमें अगर हमें 10 में करना है, तो 1 से 10 ही है, ऑब्वियसली बात है, 0 का 0 रहेगा, और 0 तो 5 से कम है, 5 भी नहीं है, तो ये आपको ऐसे लिख देना है, एज इट इज़ लिख देना है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है बच्चों? 100 पे करना है, ठीक है। तो 100 पे करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए पार्ट 463, तो 1s प्लेस है ये, 1s 10s और 100, तो हमें 100 पे करना है, ठीक है। तो 100 पे करना है, तो इसको आप सर्कल कर लेंगे, और ये बैक साइड वाले जो हो गए इनको 0 बनाएंगे हमेशा। अब फिर इसके लिए देखेंगे ये जो वैल्यू है, ये 50 और ग्रेटर देन 50 है, अगर है देन 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। और आपको पता है 63 जो है वो ग्रेटर देन 50 है, तो 1 ऐड करेंगे इसमें, तो 4 + 1 5, तो 500 इसका राउंड ऑफ हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब हम। राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, व्हाट नंबर्स बी एस्टिमेट। अब बच्चों इसको भी आपको 100 में ही करना है, जैसे कि हमें दे रखा है 500, ठीक है ना। अब 500 अगर हम देखें तो 1s 10s 100 प्लेस हो गया, तो ये 100 प्लेस हो गया, इस पर तो हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पर देखो 2 0 ऑलरेडी है, तो इसको तो 0 ही लिखेंगे, और ये 2 0 है विच इज़ लेस देन 50, इट मीन्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो 5 का 5 ही रहेगा, मतलब इसका यही आंसर हो जाएगा सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हमें 1000 पे करना है बच्चों राउंड ऑफ, ठीक है। तो 1000 के पे मतलब 1000 प्लेस पे, तो 1s 10s 100 और 1000, तो इस पे राउंड ऑफ करना है, इस पे। इसका मतलब इन तीनों को क्या करना है? 0 बना दो। अब ये वैल्यू देखो आप, क्या ये वैल्यू वेदर इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, क्या ये 500 से कम है या 500 से इक्वल है कि नहीं है? अगर नहीं है, इट मीन्स वी डोंट हैव टू ऐड टू दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर 1 ऐड नहीं करना। तो 235 इज लेस देन 500, इट मीन्स 200, जो ये जो 2 है ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा बच्चों 2000। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, एस्टिमेटिंग द सम एडिशन। तो इसमें हमें बच्चों क्या करना होता है? सबसे पहले अलग अलग 73 और 88 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। और किस पे करना होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है।
तो उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा आफ्टर एस्टिमेशन देन उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि 73 का राउंड ऑफ करा 10 पे तो 70 आया, 88 का राउंड ऑफ करा तो 90 आया, तो 70 प्लस 90 द आंसर इज 160। ओके, ऐसे इन एग्जाम्पल्स को आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। ऐसे हमें बच्चों से डिफरेंस का करना है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, क्वेश्चंस में माइनस आ गया बस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, दैट इज लेट्स प्रैक्टिस 1.5 पे। 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.5 एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। तो हमें यहाँ पर गिवन है 57 ए पार्ट में प्लस 46 होल ब्रैकेट। सो बच्चों हमें इसको 10 में करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 में करना है, तो सर क्या करना है, तो इस 10 को देखो, इसको 0 करो, ये आपका ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर दो, 6 लिख दो। इसमें भी 10 में करना है, इसको 0 कर दो, ये ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर दो, इसको 5 कर दो, अब इनको ऐड कर दो, ये होता है आपका 110 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हम फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एस्टिमेट ईच ऑफ द नियरेस्ट 100। अब हमें 100 में करना है, तो हमें क्या गिवन है, मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। 270 है और फिर हमें ऐड करना है इसमें 495। तो अब अगर हम इसको किस में करेंगे स्टूडेंट्स, 100 में, तो 1 टेंस 100, 1 टेंस 100। तो आपको पता है ये वाली को, इसको तो हम 0 ही बनाएंगे, और ये 50 से ग्रेटर है तो इसमें +1 कर दो, तो ये 300 हो गया। ये 95 को तो 0 ही बनाएंगे, और ये 50 से ग्रेटर है तो +1 कर दो, यहाँ पर 500 हो गया, इनको ऐड कर दो, 800 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एस्टिमेट इज द नियरेस्ट 1000। बच्चों इसको 1000 में करना है, चीज़ वही चल रही है सब। जैसे कि देखो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है 36703 प्लस 21375। तो 1000 प्लेस कौन सा होगा, 1 टेंस 100,000, इसको करना है हमने। ठीक है, 1 टेंस 100,000 इसको करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके पहले जो इधर वाले राइट वालों को 0 करो, और ये वैल्यू देखो 500 से क्या है, ग्रेटर है, तो 1 ऐड करो। अगर स्मॉलर होता तो 1 ऐड नहीं करते, एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस इनको 0 करना है। ये वैल्यू 500 से कम है तो कुछ ऐड नहीं करना, 1 को 1 ही लिख दो और 2 को 2। अब इनको ऐड कर दो, तो 37 में हमें 21,000 ऐड करना है, तो 0 0 0 7 और 1 8 3 2 और 5, तो ये आपका 58,000 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों अब सब्ट्रैक्शन आ गया, सेम हमें इसमें भी ऐसा ही करना है, बस हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐड की जगह हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 43 में से बच्चों हम स्टूडेंट 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये आपका टेंस में हमें करना है। तो ये 1 हो गया, 10 हो गया, तो बच्चों ये 0 कर दो, इसमें 1 ऐड नहीं करना क्योंकि 3 है, तो 4 कर दो। 10 हो गया, यहाँ पे 0 कर दो, इसको इस वाले को 1 ऐड करना है क्योंकि 9 है, तो 2 कर दो, तो ये आपका हो गया 1 ऐड करके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एस्टिमेट इज डिफरेंट टू द नियरेस्ट 100। ऐसे बच्चों ये 100 वाला भी करना है, 1000 वाला भी करना है, जैसे हमने ऐड वाले में किया। ठीक है, सेम वे में, तो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, लेट्स प्रैक्टिस 1.6 पे एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द नंबर द नियरेस्ट 10। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले एस्टिमेट करना है। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो पहले आप राउंड ऑफ करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले राउंड ऑफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। जैसे कि बच्चों 18 है इंटू 34 है, राउंड ऑफ करिए, किस पे करना है सर, 10 पे, तो 10 प्लेसेगा, 10 प्लेसेगा, इसको करो 0 ऐड करो, इसको करो 0 ऐड नहीं करना, 2 3 का बच्चों 6 होते हैं, 1 और 2 0 होगा, 600 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें बच्चों 100 प्लेस पे करना है, 278 है, 147 है, तो किस पे करना है, हमने करना है 100। तो 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, इनको बच्चों 0 करो, 50 से ज़्यादा है 1 ऐड करो, इनको करो 0, 50 से कम है ऐड नहीं करना, 3 1 सा बच्चों 3 होता है,
और 4 जीरोस, 2 और 2 4 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स। ये वाला थर्ड क्वेश्चन है। जैसे कि 255 है और 350 है, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पहले हमें क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। कैसे करना है, अपवर्ड और डाउन। इसको अपवर्ड करना है और इसको डाउनवर्ड, मतलब इसको बड़ा बनाना है नंबर। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे 255 है, ऑब्वियस है। अगर मैं इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करता हूँ तो 50 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ये 0 बन जाएगा और इसमें एक ऐड हो जाएगा, 300 हो गया। और इसको डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम कम करते हैं। तो इसको कैसे कम करेंगे, अब ये देखो यहाँ पर 50 है, तो 50 है तो इसमें डाउनवर्ड करना है। तो 350 को डाउनवर्ड कैसे करेंगे, हम 300 कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको 300, ठीक है, 300 करेंगे इसको, ठीक है, जिससे डाउनवर्ड हो जाए। क्योंकि 0 को 0 करा हमने और 5 को हमने क्या कर दिया, 0 लेट करके और इसको 300 कर दिया, ठीक है, ताकि ये मल्टीप्लाइड हो जाए। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आपका हो गया 9 और 4 जीरोस इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट है 356 इंटू 278। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड द सेकंड अपवर्ड। अब इसको बच्चों हमें डाउनवर्ड करना है, इसको हमें अपवर्ड करना है, मतलब बिगर। तो इसको डाउनवर्ड करो, छोटा बनाओ। तो इसको छोटा बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉलर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसको स्मॉलर बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर इसका ये इस पे राउंड ऑफ करते हैं तो ये तो आपका इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 है, 6 तो 5 से ज़्यादा है तो ये 60 हो जाएगा। इसको तो हमें डाउनलोड करना है। तो अगर इसको भी देखें 56 को, तो ये भी 50 से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अगर इस पे करते हैं तो इसके आगे तो 0 है, तो ये 300 से कम है, तो इसको हम डाउनवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड करते हैं अगर हम इसे, मतलब इसको स्मॉलर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम 300 कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और इसको अपवर्ड करते हैं तो ये अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम 280 कर देते हैं, या हम इसको 300 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है कि हमें यही बनाना है। तो 3 3 9 हो गया और यहाँ पर 40 हो गई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एस्टिमेटिंग द क्वेश्चंस। डिवीजन जो है उसको हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर गिवन है 6 to 7 डिवाइडेड बाय 23, तो हमें इनको एस्टिमेट करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि 627 को 600 कर लिया, 23 को 20 कर लिया, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं 1.7 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें देखो ए पार्ट क्या है आपका, 75 डिवाइडेड बाय 23। तो 75 को बच्चों राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ 5 है, 1 ऐड हो जाएगा, और इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 का, 2 से आ गया 4, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, ऐसे रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, रोमन न्यूमरल्स पे। रोमन न्यूमरल्स पे आते हैं हम। तो रोमन न्यूमरल्स पे आएंगे तो उसके बच्चों कुछ रूल्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि हम m से डिनोट करते हैं 1000 को, d को 500, c के लिए हम 100 आता है, 50 के लिए l लेते हैं, 10 के लिए x लेते हैं, और 5 के लिए v लेते हैं, और 1 के लिए i लेते हैं। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, है ना, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो और भी नंबर्स हैं, जैसे कि कुछ एक रूल्स हैं, दैट इज़ जो कि इसमें गिवन है। ठीक है, वो एक बार हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये जो 5 है ना, उसके ऊपर देखो डैश लगा दिया ऐसे करके बार, इसका मतलब होता है 5 into 1000। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर भी देखो 10 के ऊपर बार लगा दिया है, इसका अलग रूल है, 10 into 1000। इट मीन्स सर ये बार जो डिनोट कर रहा है, बार ये, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 1000 से करनी है।
ठीक है, ये इसको सिंबलाइज कर रहा है। आगे चलते हैं, अब हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। अगर बच्चों कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर आई आई आई, इसका मतलब 1 1 1 को ऐड करना है। एक्स एक्स, इसका मतलब 10 10 को ऐड करना है। ठीक है, ऐसे क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल इज अ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर नंबर। देखो हमेशा क्या करना है, हमने जो भी स्मॉलर नंबर होगा ना, जैसे कि देखो आई वी से क्या स्मॉलर है, तो हमेशा हम राइट में लिखेंगे। जैसे कि देखो राइट में लिखा है, राइट में लिखा है, ये देखो एक्स के राइट में वी लिखा है, वी के राइट में आई लिखा है, क्योंकि दीज आर स्मॉलर देन एक्स। क्लियर हो गया होगा आपको। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। और बच्चों अगर हम स्मॉलर को लेफ्ट में लिखते हैं तो हम वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर राइट में लिखते हैं तो हम वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज व्हेन अ स्मॉलर नंबर numeral is placed between two larger number, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। जैसे कि देखो बच्चों, जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो इसके बीच में एक ऐसा नंबर आ गया, तो इससे तो क्या है, ये जो 1 है ये आपका स्मॉलर है इस x से, ठीक है ना, और इससे भी स्मॉलर है, मतलब ये इससे बड़ा है, ऐसे इसके बीच में आ गया ये, ठीक है ना। तो अब आप सोचो कि ये जो i है इसको मैं x के साथ ऐड करूँ या v के साथ सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसके जो राइट में होगा, जस्ट राइट में ये वाला, उसके साथ आपने क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। सो व्हेन अ नंबर स्मॉलर न्यूमरल्स प्लेस्ड बिटवीन द टू लार्जर नंबर्स, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। जो इसके बाद वाला होगा, ठीक है ना, उससे माइनस करना होता है। तो बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ खास रूल नहीं दे रखे, एग्जाम्पल्स है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.8 पे। सो व्हाट इज दिस इन एक्सरसाइज 1.8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल। जैसे कि 28 है, इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, तो इसको 20 + 8 कर दीजिए, ऐसे ब्रेक करके ना, आपको बच्चों ईजी रहेगा। तो 20, और आपको पता है 20 मतलब 10 + 10 + 8, क्योंकि बच्चों 20 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है। 10 के लिए है x और 8 के लिए 1 v और 3, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेस करना है इसको हिंदू अरेबिक में, मतलब अपना जो हिंदू अरेबिक है उसमें लिखना है। तो हमें दे रखा है LV और II। तो आपको याद रहना चाहिए रूल LCDM वाला, कि ये आपका बच्चों 1000 होता है, ये आपका होता है 500, और ये आपका होता है बच्चों 100, और ये आपका होता है बच्चों 50, ठीक है। तो ये आपका बच्चों 50 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 5, और ये क्या होगा आपका 2, तो ये आपका क्या हो गया 50 प्लस, और यहाँ पर हो गया 50, 5 + 2 7, दैट विल बिकम 57। तो ये 57 को सिंबलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें ये बताना है विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। जैसे कि देखो यहाँ पर ए पार्ट में हमें गिवन है LX और यहाँ पर दे रखा है XC। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो L वैल्यू है ये 50 है, और ये क्या है 10 है, और 10 इसके राइट में लिखा हुआ है, तो ऐड करते हैं 60, क्योंकि स्मॉलर सिंबल राइट में लिखते हैं तो ऐड करते हैं। और बच्चों ये 10 है और ये C है, C का मतलब 100 है। जब स्मॉलर लेफ्ट में लिखते हैं तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस कर दो, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90। अब मुझे बताइए 60 ग्रेटर है या 90 ग्रेटर है, ऑब्वियस 90 ग्रेटर है, तो ऐसे सिंबल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बच्चों आप। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हमें यही करना है। देखो जैसे कि इसमें फर्स्ट दे रखा है, मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिख देता हूँ। देखो XX 11, तो XX का 20 हो गया, तो 22। उसके बाद है बच्चों XX 30 हो गया, 33। उसके बाद बच्चों XX 20 हो गया, 24। उसके बाद XL भी हो गया, L का मतलब हो गया बच्चों 50 में से आप 10 में से 40, 40 में 5 ऐड कर दो, 45 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये इसको पहले लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए। तो 22 आप देख लीजिए कौन सा था, 22 आपका फर्स्ट वाला ही था सबसे, वो तो फर्स्ट पे ही है। फिर 24 कौन सा था, थर्ड रैंक पे था,
तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। और फिर ये आपका सेकंड रैंक वाला था जो दे रखा था इसमें, और ये आपका तो 4th नंबर पे था। तो ये इसका ऑर्डर बनेगा सेंडिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चों 6 में डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आपको प्लेस उल्टा कर देना है, जो स्मॉलर है वो बिगर, मतलब आपको लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट में प्लेस कर देनी है वैल्यूज़ को। ठीक है, सो उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर। बच्चों ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज रखनी है अपने मन में, आपको इसको रिव्यू करते जाना है। और ये जो चैप्टर का रिव्यू एट द एंड, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों ये आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना, ये आपको सारे, और ये एक्टिविटी भी आपको लैब एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, सो बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस मैनी टाइम्स।